हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा नेशनल अफेयर्स ऑफ जनवरी मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट अप्रूवल्स देखते हैं। कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का फेज़ 2, जो कि कुछ वर्थ है 12,031 करोड़ रुपए का इन 7 स्टेट्स में, ये भी याद रखना। फिर एक एमओयू अप्रूव किया बिटवीन इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान ऑन कॉपरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ। देन इंडिया एंड स्पेन के बीच में जो एग्रीमेंट अप्रूव किया वो था कस्टम मैटर्स से रिलेटेड। फिर इंडिया और नेपाल के बीच में एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज को अप्रूव किया ओवर महाकाली रिवर। इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओवर महाकाली रिवर। और ये ब्रिज कहाँ पर किसके बीच में बन रहा है? इंडिया एंड नेपाल के बीच में। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded and logged in through your Gmail ID, you will be transferred to this page. And you can see here various all courses and various other sections provided to us. The courses that are provided by our team are very helpful and they will be very useful in your preparation. In the courses that we provide, we give you daily current affairs, weekly current affairs and monthly current affairs. In daily current affairs, we will be providing you with multiple quiz of 20 questions daily. Then we'll be giving you the daily current affairs content also. Similarly for weekly, we will providing you 50 questions of quiz on weekly basis, as well as all the important current affairs of that week will be given to you in an ebook. Similarly for monthly basis. Apart from this, we'll be providing you with banking awareness and all the banking relating exams. So don't worry, your preparation is in our hands. We'll be providing you with the best content. Apart from this, then you should know we've covered topic wise. Important daily topic wise or the monthly topic wise are covered in our course. We'll give you 20 types of such PDFs that will cover apps and web portals, important days, books and authors, national affairs, international affairs, sports, awards, applications and web portals, and defense sector. All the topics that you see of general studies are basically covered here. As you saw, we provide current affairs in English, Hindi, banking awareness, exam PDF, special current affairs, topic wise current affairs are provided to you, state current affairs, then topic wise quizzes are provided to you. There is another section in special current affairs, that is learn from picture, and we have named this infographics. Infographics are your interactive PDFs that you can interact with. They are highly informative. I highly suggest you to go and check these out because they will be helping you to learn things in an interactive way. So do check them out. They will be very valuable to you. These are very important, so you should be able to revise them from using our course. All you have to do is to purchase our course. You can use code Vikas10, that will be giving you an additional 10% discount on the purchase you make. So it is a bumper offer. All you have to do is go and download our app and check our courses. So friends, we'll start with the session. वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 19th ट्रेंच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अप्रूव किया। झारखंड ने पार्टनर किया इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस टू बूस्ट फॉरेस्ट इकोनॉमी। फॉरेस्ट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए झारखंड स्टेट ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से टाई अप किया। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम। फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम किन के द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया पढ़े भारत 100 डेज रीडिंग कैंपेन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किन के द्वारा लॉन्च किया गया? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। नेक्स्ट, फिर याद रखना पूछा जाए कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT के द्वारा अभी रिसेंटली 6G के डेवलपमेंट एंड इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के लिए याद रखना, या डेवलपमेंट के लिए कितनी टास्क फोर्स इस्टेब्लिश की गई थी? तो 6, ठीक है, फॉर टू एक्सप्लोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ 6G डेवलपमेंट के लिए DOT के द्वारा 6 टास्क फोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। कहाँ पर? पुडुचेरी में। इंडिया का ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर, इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्या नाम है? गुलाबो। इनके गुलाबो का डेथ हो गई कहाँ पर? वन विहार नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश, भोपाल में, ठीक है। गुलाबो ये क्या है? इंडिया का ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली इन जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बीच हुई थी पंजाब में,
उसको मॉनिटर करने के लिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी इस्टेब्लिश की गई। उस हाई लेवल कमेटी को हेड करने वाली व्यक्ति कौन है? वो है इंदु मल्होत्रा जी। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला हेली हब। हेली हब क्या होता है? हेलीपोर्ट। जैसे आपका एयरपोर्ट होता है एरोप्लेन्स के लिए, हेलीकॉप्टर्स वगैरह के लिए आपका एक हेली हब होगा, जहाँ पे आपका स्टोरेज होगा, उनका रिपेयर, मेंटेनेंस, वहीं से टेक ऑफ साइड से, तो वो सब क्या होता है? एक हेली हब होता है। वो कहाँ सेटअप किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट। इंडियन रेलवे ने अभी एक मिशन अमानत लॉन्च किया टू हेल्प पैसेंजर्स गेट देयर लॉस्ट ट्रैकिंग्स। मतलब जो उनकी बिलोंगिंग्स होती है ना, जैसे किसी का सामान गुम हो गया तो उनको ट्रैक करने के लिए कि भाई वो कहाँ पे है, उसकी क्या सिचुएशन है, कस्टमर केयर प्रोवाइड करना, वो सब लॉन्च किया गया मिशन अमानत के नाम से इंडियन रेलवे के द्वारा। 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया? मणिपुर में ऑब्जर्व किया गया। इंडिया स्किल 2021 के नेशनल कॉम्पिटिशन में कौन सी स्टेट ने टॉप किया? ओडिशा ने टॉप किया, याद रखना। इंडिया स्किल 2021 नेशनल कंपटीशन में टॉप किया ओडिशा ने। नेक्स्ट, इंडिया का पहला कोल टू मेथनॉल प्लांट कहाँ पे बनाया जाएगा? ये हैदराबाद में सेटअप किया जाएगा। और किसके द्वारा? भेल के द्वारा सेटअप किया जाएगा, मार्क करना। पहला कोल टू मेथनॉल प्लांट, इसको CTM भी आ सकता है। कहाँ पे? भेल के द्वारा, हैदराबाद में। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रोजगार मिशन को लॉन्च किया टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। रोजगार हिंदी में, रोजगार का मतलब हिंदी वर्ड है ये, इंग्लिश में वर्ड हो गया इसका एम्प्लॉयमेंट। तो रोजगार मिशन क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फिर 16वें इंडिया डिजिटल समिट 2022 की बात करें तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था? 16वां एडिशन ऑफ इंडिया डिजिटल समिट ऑर्गेनाइज कराया गया इंडिया इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा 16वां एडिशन ऑफ डिजिटल समिट 2022 ऑर्गेनाइज कराया गया। फिर हम बात करेंगे RIL ने साइन किया एक MOU गुजरात के साथ फॉर बाय इन्वेस्टिंग 6 लाख करोड़ रुपए के करीब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की इन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। फिर हम बात करेंगे अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज कराया 26वां एडिशन ऑफ CISO डीप ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम विद अंडर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। केरला का कुंबलंगी विलेज, ये इंडिया का फर्स्ट इको सेंसिटिव टूरिज्म विलेज बना और बिकेम द इंडियाज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। दो चीज़ें याद रखनी है, देखो पहले तो केरला की फर्स्ट इको टूरिज्म विलेज कौन सी है? कुंबलंगी विलेज केरला की। और कुंबलंगी विलेज ही इंडिया की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज भी बनी, जो कि केरला में है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया माना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम। माना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम लॉन्च किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हमें याद रखना है कि इंडिया ने मालदीव्स के साथ टाई अप किया, किस लिए? ताकि जॉइंट या फिर जॉइंट नहीं, या कह दीजिए इंडिया और मालदीव्स ने टाई अप किया हाउसिंग यूनिट्स के लिए। हाउसिंग यूनिट्स बनाने के लिए ये टाई अप किया गया। कहाँ पर? मालदीव्स में बनेंगे ये हाउसिंग यूनिट्स। जैसे इंडिया में क्या चलती है? आवास योजना। आवास योजना क्या है कि लोगों को घर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सिमिलरली ऐसे ही सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया मॉरिशस में, इंडिया एंड मालदीव्स ने मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट, और एक चीज़ और याद रखना, इंडिया ने मालदीव्स में मई 2016 में $353 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी कुछ 5 सेक्टर्स पे। जैसे 5 प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया था इंडिया ने। वो थे एक तो मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, न्यू ENT हॉस्पिटल, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, सप्लाई ऑफ डिजिटल टैबलेट्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन एंड सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली एक पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया गया 75वें साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिलीज किया एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प कमेमोरेटिंग द 75th प्लेटिनम जुबली ईयर ऑफ CSIR। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस CSIR का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में होता है। इसके 75 साल की एनिवर्सरी में प्लेटिनम जुबली ऑफ ईयर सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च करा गया। नेक्स्ट, सेंटर ने रिलीज किए 830 करोड़ रुपए टू ओडिशा फॉर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के लिए सेंटर के द्वारा 830 करोड़ रुपए लॉन्च किए गए ओडिशा के लिए फॉर जल जीवन मिशन। अगला, PM मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पर है? मेरठ यूपी में। मेरठ यूपी में ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको याद रखना है। और इसी के साथ साथ जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो क्या है? वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं।
लद्दाख ने सेलिब्रेट किया ट्रेडिशनल न्यू ईयर जिसको लोसार फेस्टिवल बोलते हैं। फिर लोसोंग आ जाए, लोसोंग फेस्टिवल ये किसका है, सिक्किम का है। हिमाचल प्रदेश वो पहला फर्स्ट एलपीजी एनेबल्ड और स्मोक फ्री इंडियन स्टेट बना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना। इंडिया का पहला एलपीजी एनेबल्ड और स्मोक फ्री इंडियन स्टेट है हिमाचल प्रदेश। तेलंगाना ने टॉप किया हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस में, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब कोई खुले में शौच ना करे, इसलिए प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह डेवलप किए जा चुके हैं वहाँ पे, इसमें टॉप किया तेलंगाना ने। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया नीट 3.0 एडटेक सॉल्यूशन। देखो एडटेक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, किन्होंने लॉन्च किया, धर्मेंद्र प्रधान ने, और ये किस मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से लोकेटेड है। नेक्स्ट अज्यूर पावर, अज्यूर पावर लॉन्च किया गया एसईसीआई के द्वारा। ये 600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है और LAR सोलर प्रोजेक्ट है, बीकानेर राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया ने अभी हमने डिस्कस किया था, लॉन्च किया कोल टू मेथनॉल प्लांट। ये कोल टू मेथनॉल प्लांट कहाँ पे बनाया गया है, हैदराबाद में डेवलप किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये याद रखना। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया टू प्रमोट लोकल हैंडीक्राफ्ट थ्रू टूरिज्म। टूरिज्म की मदद से लोकल हैंडीक्राफ्ट को, अपने लोकल आर्ट को प्रमोट करने के लिए अपना कांगड़ा ये एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड, उत्तराखंड ने अपना स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया था, ऋषभ पंत को। और अगर कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव के जो ब्रांड एम्बेसडर बने महाराष्ट्र के लिए, वो कौन थे, सलमान खान। जेरी हेमलेट इन रियासी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट मिल्क विलेज कौन बनी, जेरी हेमलेट, रियासी डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका पे, वो पहली इंडियन स्टेट बनी जिसने AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया बेंगलोर में। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने एक MOU साइन किया टू रिवाइव सरस्वती रिवर, मतलब सरस्वती रिवर के रिवाइवल के लिए एक MOU साइन किया गया हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच। IMD इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिलीज किया क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट। इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पे लॉन्च किया गया, लखनऊ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ में। फिर क्लाइमेट हजार्ड एंड वर्नेबिलिटी एटलस, ये क्लाइमेट हजार्ड एंड वर्नेबिलिटी एटलस, इसमें पुराने जो हमारे डिजास्टर्स आए थे जो उनको नोट किया गया, फिर जो आपके क्लाइमेट से रिलेटेड डाटा है वो प्रेजेंट किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, फिर ये एटलस IMD इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, पुराने 3 मोस्ट हैजार्डस मीटरोलॉजिकल इवेंट्स जो हुए थे उसका डाटा उसमें जो लॉस उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई। और ये कब प्रेजेंट की गई, 147th फाउंडेशन डे ऑफ IMD के, जो कि 14 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 14 जन को क्या है, 147th फाउंडेशन डे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 4,800 करोड़ रुपए, कहाँ पर, मणिपाल, इम्फाल में। उजाला स्कीम 7 ईयर कंप्लीट करे, पहली चीज़ तो याद रखना। इसमें अराउंड 36 करोड़ 70 लाख LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं अंडर दिस उजाला स्कीम। ठीक है, हर घर बिजली या हर घर जो आपके LED बल्ब होते हैं वो पहुंचाने की बात की गई थी। फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड अक्षय पात्र फाउंडेशन ने पार्टनर किया टू एनहेंस PM पोषण स्कीम, मार्क करना। केरला हाई कोर्ट इंडिया का पहला पेपरलेस कोर्ट बना। पहली पेपरलेस सिटी कौन सी थी, दुबई। ठीक है, फिर अगर बात करें पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा हो गया आपका, केरला कोर्ट। सरबंदना सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल योगा अकेडमी, कहाँ पर, हैदराबाद में। सरबंदना सोनोवाल इन्होंने अपना इंटरनेशनल योगा अकेडमी स्टार्ट की, कहाँ पे, हैदराबाद में। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया उन्नति पोर्टल। याद रखना, उन्नति आ जाए तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। उन्नति एक पोर्टल, वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देन याद रखना, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक 100 डे का रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया जो था पढ़े भारत ऑन 1 जनवरी 2022। धर्मेंद्र प्रधान हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। 100 डे लंबा रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया था
पढ़े भारत के नाम से, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। 100 दिन कह लो या 14 वीक कह लो, ये जनवरी से अप्रैल तक ये लागू रहेगा। एम क्या है? टू प्रमोट जॉयफुल रीडिंग कल्चर फॉर चिल्ड्रन बाय इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एज अप्रोप्रिएट रीडिंग बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग द लोकल मदर रीजनल ट्राइबल लैंग्वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली हमने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहाँ पे? मेरठ, यूपी में। नेक्स्ट आ जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्रैंड होलोग्राम स्टैचू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ग्रैंड होलोग्राम स्टैचू इंस्टॉल किया गया इंडिया गेट पे। मार्क करना, किन का? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। केरला को अपना फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस मिला। मार्क करना। मानसुख मांडविया ने लॉन्च किया रिवैम्प्ड सीजीएचएस वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। सीजीएचएस की मोबाइल एंड वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई? मानसुख मांडविया जी के द्वारा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्राम ग्रामा 1। रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी नोटिफाइड एज द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर? थिसूर, केरला में बनाया जाएगा। ये भी मार्क करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली हमने बात की कि 700 करोड़ लगाकर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी मेरठ, यूपी में, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखना है इस यूनिवर्सिटी में 1080 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे एनुअली। एंड मेरठ से रिलेटेड आपको याद रखना है, मेरठ एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग, जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड गुड्स होते हैं ना, इक्विपमेंट्स, उसका एक्सपोर्टिंग हब बन चुका है टू मोर देन 100 कंट्रीज। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड अ टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर इनॉग्रेट किया गया ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया क्रिएशन ऑफ 13 मोर डिस्ट्रिक्ट। अभी 13 मोर डिस्ट्रिक्ट नए डिस्ट्रिक्ट के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा बनाए जाएंगे। फिर अगर पूछा जाए कि इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है, वो गुरुग्राम, हरियाणा में। लोकसभा सेक्रेटरीट की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया डिजिटल संसद ऐप टू मेक लाइव प्रोसीडिंग्स एसेसिबल। लाइव प्रोसीडिंग मिल सके, उनको एसेसिबल बनाया जा सके, इसीलिए लोकसभा सेक्रेटरीट ने लॉन्च किया डिजिटल संसद ऐप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया इंडिया का सेंट्रल एशिया समिट 2022। इंडिया सेंट्रल, आई रिपीट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022। इंडिया विल कन्वर्ट 150 विलेजेस इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस विद टेक्निकल हेल्प फ्रॉम इजराइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट। इंडिया की हेल्प कौन कर रहा है? इजराइल। किस लिए? 150 विलेजेस को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस, 150 विलेज, इंडिया एंड इजराइल। नेक्स्ट, फिर 2 फेस्टिवल याद रखना। लद्दाख सेलिब्रेट कर रहे हैं लोसार फेस्टिवल, ये एक ट्रेडिशनल न्यू ईयर होता है लद्दाख की पीपल का। फिर सिक्किम फेस्टिवल 2 ऑब्जर्व करेगा, लोसोंग और नामसोंग भी याद रखना। लोसोंग तो हम सबको पता है सिक्किम ऑब्जर्व करते हैं, तो नामसोंग भी साथ साथ याद रखना। वापस आइए, असम गवर्नमेंट और एनडीडीबी, इनका एक जॉइंट वेंचर है 2000 करोड़ का फॉर डेयरी डेवलपमेंट। आई रिपीट, असम गवर्नमेंट का एनडीडीबी के साथ 2000 करोड़ का डेयरी डेवलपमेंट में जॉइंट वेंचर। भूपेंद्र यादव ने 19th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को चेयर किया, जिसमें 14 टाइगर रिजर्व्स को CATS एक्रेडिशन मिला। इसमें याद रखना, अगर मैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट की बात करूं तो ये कब आया था? 1973 में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेलेक्टेड TCS फॉर सेकेंड फेज ऑफ पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम मार्केट। ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया गया चाइल्ड मैरिज फ्री। चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर किया गया ओडिशा के कौन से डिस्ट्रिक्ट को? गंजम डिस्ट्रिक्ट को। नेशनल हेल्थ मिशन, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट, गंजम डिस्ट्रिक्ट को चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर किया गया? तो ओडिशा स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ मिशन ने लॉन्च किया निर्मय इन असम। असम में क्या लॉन्च किया गया? निर्मय। या निर्मय कहाँ लॉन्च किया गया? असम में। केवाडिया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाने का जो रेलवे स्टेशन है ना, वो केवाडिया है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ लोकेटेड है? वो भी केवाडिया, गुजरात में ही लोकेटेड है। तो केवाडिया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन है। फिर आपको याद रखना है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने लॉन्च किया इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। कहाँ पर? गाजियाबाद में। इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर? गाजियाबाद में। नेक्स्ट आपको याद रखना है 9th एडिशन किसका? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का। पूरे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका भी 9वां एडिशन था। ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दे,
ठीक है, तो ये 9th एडिशन था इस फेस्टिवल का, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का। इनॉग्रेट किया गया था गवर्नर ऑफ असम के द्वारा, जगदीश मुखी के। ठीक है, नेक्स्ट ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का हमें एक ऑर्डर आया है फिलीपींस के द्वारा, मतलब फिलीपींस ने ऑर्डर अप्रूव द परचेज ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल विद इंडिया फॉर इट्स नेवी, उनकी नेवी के लिए। ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस किसके उससे टाइप्स है, इंडिया एंड रशिया के साथ मिलके ये आपका ब्रह्मोस बनाया गया था, उनका जॉइंट वेंचर था। फिर बात करें तो कुंबलंगी विलेज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये इंडिया की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज है एंड ये फर्स्ट इंडिया की पहली इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज भी है। ठीक है, इंडिया की पहली इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज एज वेल एज इंडिया की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। फिर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का, हमने क्या पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी एनेबल्ड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट है। ऑलराइट, एलपीजी एनेबल्ड पहला एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपकी इंडिया की लार्जेस्ट फैक्ट्री भी लोकेटेड है। ठीक है, और उत्तराखंड के स्पोर्ट ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया, ऋषभ पंत को, ताकि उनके स्टेट में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, कोची बिकेम इंडिया की पहली सिटी टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इंडिया का पहली सिटी किस में होगा, कोची में। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क, ताकि वहाँ के एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा एक क्वेश्चन था, इंडिया में वो पहली कौन सी वाइल्ड लाइफ या नेचुरल पार्क है जिसमें सैटेलाइट फ़ोन लगा है, सैटेलाइट फ़ोन एक लौता है वो, उसको कमेंट करके बताओ कौन सा है, कौन सी स्टेट में है, होमवर्क है ये आपका। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर ने साइन किया एक एमओयू विद दुबई की सेंचुरी फाइनेंशियल टू रिसीव $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट। जम्मू एंड कश्मीर ने साइन किया दुबई की सेंचुरी फाइनेंशियल से। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट की एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर एंड कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर को पुडुचेरी में। इंडिया का ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर कहाँ है, कौन सा है, गुलाबो। इसकी डेथ हो गई थी कहाँ पर, वन विहार नेशनल पार्क में, और वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, भोपाल में। भोपाल का मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या है, बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी वहीं लोकेटेड है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की एक हाई लेवल कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो सिक्योरिटी ब्रीच को इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको हेड कौन करेगा, इंदु मल्होत्रा। और इंडिया का पहला हेली हब कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा। देखो रिवीजन भी हो गई कितनी इजीली। वापस आइए, केवाड़िया रेलवे स्टेशन क्या पढ़ा था हमने, इसका नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया था। ठीक है, और इस एकता नगर का जो स्टेशन कोड है वो है EKNR। इसकी बात करें तो ये रेलवे स्टेशन है जिससे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जा सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू। इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर। ये कहाँ पे लोकेटेड है, केवाड़िया, गुजरात स्टेट, याद रखना। ठीक है, और अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें किसकी मेमोरी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेमोरी में बनाया गया, उनके 143rd बर्थ एनिवर्सरी के दिन, जो कि 31 अक्टूबर 2018 को थी, ये लॉन्च किया गया। पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कब लॉन्च किया गया, 2018 में 31 अक्टूबर को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे है, और ये 143rd बर्थ एनिवर्सरी के दिन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे आइए, फिर पूछा जा रहा है कि ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर, केरला पे बनेगा। ग्राफीन क्या होता है, ग्राफीन एक आपका थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड है, ये चीज़ याद रखना। और एक ये एलोट्रोप है किसका, कार्बन का। ठीक है, ग्राफीन में इतना पोटेंशियल है कि जो ये कैन रिप्लेस द इंडियम एंड इट्स विल लोअर द कॉस्ट ऑफ OLED। हम पहले LED सुनते थे, लाइट एमिटिंग डायोड, फिर आ गया ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये इसका ऑर्गेनिक वर्जन है, मतलब इसका एडवांस्ड वर्जन है। तो ये OLED की कॉस्ट को और रिड्यूस कर सकता है, जो आपके स्क्रीन स्मार्टफोन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिपब्लिक डे से रिलेटेड। ठीक है, रिपब्लिक डे कब, 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी दिन इंडिया ने अपना बिगेस्ट फ्लाई पास्ट ऑब्जर्व किया, जिसमें 75 एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो बिगेस्ट फ्लाई पास्ट में कितने एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया, 75 इंडियन एयरफोर्स के पार्टिसिपेट किया, जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर थे। ठीक है, क्या थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, और ये बनाए किसके द्वारा गए थे, आर्मी एविएशन कॉर्प्स के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, फिर आपको याद रखना है इसमें कितनी झांकियों ने पार्टिसिपेट किया, 21 झांकियों में पार्टिसिपेट किया। DRDO ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें, नेवी ने और एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया इनकी झांकियों ने। ऑलराइट, तो 21 में से याद रखना 9 तो स्टेट्स रहेंगी आपकी, 12 तो स्टेट्स रहेंगी, और 9 आपकी यूनियन टेरिटरीज की झांकियाँ रहेंगी। तो टोटल 12 स्टेट्स की झांकियाँ और 9 यूनियन टेरिटरीज की झांकियों ने पार्टिसिपेट किया। DRDO की झांकी, नेवी की झांकी और एयरफोर्स की झांकी भी। फिर आपको याद रखना है एयरफोर्स की झांकी में वो पहली
फीमेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी जिन्होंने इस झांकी में पार्टिसिपेट किया? वो है फाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना, भावना कांत। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।